Okay, good morning, everyone. So, today we are going to start with the last unit of this chapter, that is Unit 4. Now, this particular unit specifically talks about unpaid seller. Okay, specifically talks about unpaid seller. Okay, so by the name itself, we understand that a seller who has been unpaid will be called as an unpaid seller. Correct? English meaning क्या होता है unpaid का? The one who's not paid. Simple. Okay. So now I'll give you two examples. ठीक है, आपको examples देख के बताना है whether he will be called as an unpaid seller or not. ठीक है, तो first example is ये seller है and this is the buyer. ठीक है, अब buyer को seller को supposedly देने हैं ₹100. ठीक है, कितने देने हैं बायर को सेलर को? बायर हैज टू पे, बायर हैज टू टेंडर ₹100 टू द सेलर. अब बायर हैज पेड ₹20, तो यहां पर मैं लिख देती हूं पेड. ओके, एंड हाउ मच इज पेंडिंग? ₹80 इज पेंडिंग. करेक्ट, मतलब बायर ने 20 रुपए दे दिए हैं और ₹80 is still pending. So now my question to you is, in this case, whether seller will be called as unpaid or not. तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, in this example only part payment is pending. Correct? सिर्फ part of the payment is pending, part has been paid. तो क्या इस केस में ये जो सेलर है उसे हम अनपेड कहेंगे या नहीं कहेंगे? टेल मी, जस्ट टेक अ रफ गेस, यस और नो. बताओ चैट बॉक्स में, विल ही बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर और नॉट? द मेजॉरिटी सेज यस, ही विल बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर. करेक्ट बात है. यहां पर अगर आपका पार्ट पेमेंट भी पेंडिंग है, even if part payment is pending, so even in such cases the seller will still be called as an unpaid seller only. ठीक है, अब अगर पूरा ही 100 रुपए बाकी होता तो उसमें तो वो अनपेड ही कहलाता. अब पार्ट में अनपेड कहलाता है, तो फुल पेमेंट अगर पेंडिंग होता तो उसमें भी वो अनपेड ही कहलाता. करेक्ट. सो इन दिस एग्जाम्पल what have we studied, that if the whole amount is pending or even if part amount is pending, in both the cases the seller will be called as an unpaid seller. ठीक है, I'll pause over here. Okay, so from this example we have understood one thing, that unpaid seller हम किसे कहेंगे? जिसका अगर पार्ट पेमेंट भी बाकी है तो हम उसे भी अनपेड सेलर ही कहेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस रीड द कंटेंट. ओके, फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है आपको, मीनिंग ऑफ एन अनपेड सेलर. लेट अस रीड द मीनिंग. ओके, टू अंडरस्टैंड हु इज एन अनपेड सेलर वी फर्स्ट नीड टू नो हु इज द सेलर. करेक्ट. अनपेड सेलर कौन है उसके पहले ये पता लगाओ कि सेलर हम किसे कहते हैं. तो seller is something very obvious. The person who sells goods will be called as the seller. Correct? Let us read. Seller means either the real seller. Seller means either. Okay, अब यहाँ पर आपको 3 points दिए हुए हैं. Now in these 3 points they have defined who is the seller. Point 1, point 2, point 3. ठीक है, तो first point में क्या कह रहे हैं? Seller means a person who is a real seller. What do you mean by the word real seller? Real seller हम उसे कहते हैं the person who owns the goods and he is only selling it. ठीक है, so supposedly if I'm selling this pen, so I will be called as a real seller. Why? Because I own this commodity and I am only selling it. So I become the real seller. ठीक है. Point 2 देखो, agent. अब देखो agent को इन्होंने point 2 में क्यों कहा है?
because the agent does not own the goods. Who owns the goods? The principal owns the goods. और agent सिर्फ काम करता है principal का. He works on the instructions and he earns commission. Correct? So you have to understand the difference, why they have differentiated between the word real seller and the word agent. Real seller कौन होता है? The one who owns the goods and he is only selling it. Correct? Agent कौन होता है? Agent goods को own नहीं करता है. He is merely selling the goods as per the instructions of the principal. Correct? और third point देखो, a consignor. Now, who is a consignor? Who has himself paid for the goods in or is anyway directly responsible for the price of the goods from the buyer. ठीक है, so who is a consignor? You can take it in this way. आप accounts में भी खैर पढ़ने वाले हो consignment. So he is a person who will first pay for the goods to the principal, then he will purchase the goods and then he will sell the goods further to the buyer. ठीक है, सो अब इन तीनों को इन्होंने सेलर की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है. सो इन दीज 3 पॉइंट्स यू विल अंडरस्टैंड दैट हु इज द सेलर. अच्छा, अब अनपेड सेलर क्या होता है ये तो हमने चलो एग्जांपल से पता चल गया हमें. द पर्सन हु इज नॉट बीन पेड विल बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर. और हमको ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स में ये पता चल जाता है कि हु इज द सेलर. करेक्ट? So now we have understood who is the seller, and we also know with the help of an example that who will be called as an unpaid seller. अब next देखो, next आपको unpaid seller की यहाँ पर बात की गई है. According to section 45, a seller is said to be unpaid when. तो यहाँ पर आपको 2 points हैं जिसमें आपको यहाँ पर उन्होंने बताया है कि unpaid seller कौन होगा. ठीक है, let us read the first point. अच्छा, दोनों में एग्जाम्पल्स हैं. ओके, लेट अस रीड द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट में क्या लिखा है? द होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड. मतलब क्या? होल ऑफ द प्राइस. अब आपको याद है हमने एग्जाम्पल लिया था सेलर और बायर का. बायर को कितने रुपए देने थे? सेलर को 100 रुपए. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? जहां पर आपका पूरा अमाउंट पेंडिंग है. क्या है? लेट अस रीड द फर्स्ट लाइन अगेन. The whole of the price of the goods has not been paid or tendered. मतलब जहां पर पूरा 100 का 100 रुपीज 100 इज पेंडिंग. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? अगर पूरा अमाउंट पेंडिंग है तो इस केस में हम सेलर को क्या कहेंगे? द सेलर इज एन अनपेड सेलर. करेक्ट? The first case says that where the entire amount is pending, okay, in such cases the seller will be called as an unpaid seller. ठीक है, चलो now let us read the example which has been attached to point 1. अब एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है बट वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. देखो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स. मिस्टर ए sold goods worth rupees 80,000 to Mr. B. तो B कौन बन जाता है यहाँ पर? B is the buyer. Correct? Now Mr. B paid 65,000 but failed to pay the remaining 15,000. So let me write down over here A and B. तो A यहाँ पर seller है, B is the buyer. ठीक है, अब buyer को कितने पैसे देने थे seller को? 80,000. Correct? जिसमें से कितना पेड है? I'll write over here 65,000 has been paid. 65,000 has been paid. और पेंडिंग कितना है? 15,000. करेक्ट? 15,000 अभी भी पेंडिंग है. तो ये कौन सा केस हो गया? जहां पर पार्ट पेमेंट इज पेंडिंग. करेक्ट? पार्ट पेमेंट इज पेंडिंग. तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था. करेक्ट? यहाँ पर कितना पेंडिंग है? सिर्फ 15,000 पेंडिंग है ना. तो व्हाट डज दैट मीन? दैट पार्ट हैज बीन पेड एंड पार्ट इज स्टिल पेंडिंग. करेक्ट? तो क्या इस केस में भी ये सेलर को हम अनपेड सेलर बोलेंगे? द आंसर इज यस. करेक्ट? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. मैंने आपको
ये स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था पार्ट वाला, करेक्ट. सो इन दिस केस इवन इफ पार्ट पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग, he will be called as an unpaid seller only. ठीक है, तो यहाँ पर 80,000 देना था जिसमें से 65,000 ऑलरेडी पेड है, बचा कितना 15,000. 15,000 अब तक बाकी है देना. तो इस केस में भी हम सेलर को क्या मानेंगे, दैट ही इज एन अनपेड सेलर. सो इवन इफ पार्ट पेमेंट इज पेंडिंग, ही विल बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर ओनली. ठीक है, तो हमको पॉइंट में क्या दिया था, वेर होल अमाउंट इज पेंडिंग, करेक्ट. और एग्जाम्पल में पार्ट पेमेंट का एग्जाम्पल दिया है, तो हमको इन शॉर्ट फर्स्ट पॉइंट से समझता क्या है. आई विल राइट डाउन ओवर हियर. फर्स्ट पॉइंट में we understood two things, where whole amount is pending, where part payment is pending. दोनों केसेस में सेलर को अनपेड सेलर ही बोलेंगे. ओके, where whole amount is pending और where part amount is pending. In both the cases the seller will be called as an unpaid seller only. ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो ऐसा मत समझना कि पार्ट तो पेड है, पार्ट ही पेंडिंग है ना, तो still he will be called as an unpaid seller only. ठीक है, so in point 1 we have been clarified about both the things, where whole is pending and where part is pending. In both the cases he will be called as an unpaid seller only. ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है. हाँ, so 65,000 has been paid but failed to pay the remaining 15. Okay, here A is an unpaid seller as complete amount has not been received. Okay, तो यहाँ पर complete amount कितना receivable होना चाहिए था 80,000, पर received कितना है सिर्फ 65, मतलब 15 अभी भी pending है. ठीक है, इसलिए वो unpaid seller ही कहलाएगा. So this is point number 1. Now let us read point number 2. Point number 2 क्या कहता है, where a bill of exchange, okay, where a bill of exchange or any other negotiable instrument like a check or a promissory note has been received by the seller, okay, but has not been fulfilled by the reason of dishonor. सुनो, अब हुआ क्या, let us take an example again. The seller, buyer को seller को कितना देना था 80,000. ठीक है, तो बायर ने क्या किया, बायर ने 80,000 का कैश ना देते हुए ये 80,000 कैसे दिए, थ्रू द हेल्प ऑफ अ चेक. ठीक है, सो बायर गेव अ चेक टू द सेलर, ओके, एंड द चेक वाज हाउ मच ऑफ रुपीज 80,000. तो अब ये सेलर ने चेक ले लिया, सेलर जाता है बैंक में, और बैंक में जब वो चेक को डिपॉजिट करता है, सो द चेक हैज बिन डिसऑनर्ड, वो बाउंस बैक हो जाता है. ठीक है, तो इस केस में भी अगेन क्या पेमेंट कंप्लीटली रिसीवेबल है, रिसीव्ड है क्या, नहीं. बायर ने तो सिर्फ चेक दिया, चेक इज अ फॉर्म ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट. बायर ने चेक दिया, तो फॉर द टाइम बिंग हमको क्या लगेगा, अच्छा चेक दिया ना मतलब पेमेंट तो डन है. फिर जब सेलर जाके वो चेक को एक्चुअली जाके डिपॉजिट करता है बैंक में, तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है. ओके, तो अब ये डिसऑनर क्यों होता है, देयर आर सेवरल रीजंस. तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि बायर के अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे, इसलिए वो चेक डिसऑनर हो जाता है. सो अगेन इवन इन सच केसेस द सेलर विल बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर, क्योंकि फाइनली क्या सेलर को पेमेंट मिली है, द आंसर इज नो, बिकॉज चेक तो बाउंस हो गया, करेक्ट, चेक तो डिसऑनर हो गया. तो क्या सेलर को पेमेंट मिली है क्या, is it received in his hand? No, the answer is no. Why? Because the check has been dishonored. और reason क्या है, by the reason of dishonor of the instrument. ठीक है, so in short जो हमको फर्स्ट पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट में आपको ऐसे अज्यूम करना है कि वो कैश की बात कर रहे हैं, और सेकेंड पॉइंट में ये किसकी बात कर रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, लाइक अ चेक और अ प्रोमिसरी नोट. ठीक है, तो अगर पॉइंट 1 की मैं बात करूं, पॉइंट 1 स्पीक्स अबाउट कैश, जहां पर
बायर ने सेलर को कैश नहीं दिया है। पॉइंट 2 टॉक्स अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ चेक। चेक के केस में क्या है, बायर ने सेलर को चेक दिया है पर वो बाद में जाके डिसऑनर निकला, तो इस केस में भी सेलर क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर। और इस केस में भी क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर। तो यहाँ पर तो कैश ही नहीं दिया है बायर ने। यहाँ पर सेकंड केस में बायर ने चेक दिया है, पर क्या वो चेक फुल सक्सेसफुल हुआ है, क्लियर हुआ है क्या? द आंसर इज नो. So of course, in such cases, the seller will be called as an unpaid seller because the check has been dishonored, it has been bounced, the seller has not received the amount in his account, right? So of course, in such cases also he will be called as an unpaid seller only. ठीक है? So I hope the 2 points are cleared. Okay? ये अनपेड सेलर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? It's been defined under section 45. ठीक है? Okay, let us read the example of second point. देखो, Mr. A sold goods worth rupees 80,000 to B. Okay. Now Mr. B gave A check of rupees 80,000. However, when presented, the check was dishonored. When presented मतलब क्या? जब seller अपनी बैंक के पास जाता है और present करता है, तो check has been dishonored by the bank. Here A is an unpaid seller since check received was dishonored. ठीक है? अब आफ्टर रीडिंग दीज 2 पॉइंट्स, अब आपको एक नीचे एक समरी दी गई है. नाउ दिस इज द समरी, जहां पर अब तक जो जितना भी आपने पढ़ा है, इट इज बिन गिवन ओवर हियर. ठीक है? इन दीज 2 पॉइंट्स, these 2 lines, let us read. Thus unpaid seller is a one who has not been paid, who has not been paid or partly paid or accepts a bill of exchange which has been dishonored, ठीक है, which fails to honor, or buyer has become insolvent. मतलब अब तक आपने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं. ये 2 लाइंस में इन्होंने एक और चौथी चीज भी दी गई है which is new. और वो न्यू पॉइंट कौन सा है? where buyer has become insolvent. देखो, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो सेलर तो अनपेड ही होगा ना. When buyer is insolvent, what is the meaning of insolvent? Where he is not able to fulfill his obligations. तो buyer insolvent हो गया है. तो जब buyer insolvent हो जाएगा तो वो seller को पे क्या करेगा? तो जब वो seller को पे नहीं करेगा तो seller क्या होगा? Seller unpaid होगा. Correct? So in these 2 lines, in short आपको 4 चीजें लर्न करनी है. ठीक है? मैं वापस से आपको एक समरी बना के देती हूँ. Now write down in your book. ठीक है? Simultaneously लिखते जाओ. So give the heading unpaid seller. ये heading दे दो. ठीक है? Now in this you have to learn 4 points. ठीक है? First point is, I'll write down full amount is pending. Full amount is pending. Second point होगा part amount is pending. ठीक है? थर्ड पॉइंट होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में लिखो चेक, हैज बिन dishonored. Has been dishonored. Has been dishonored. और पॉइंट 4 होगा buyer has become insolvent. तो अगर ये चारों केसेस में
कोई एक भी अगर फुलफिल होता है, so the seller will be called as an unpaid seller. These are the 4 different cases. लिख लो. Now in these 2 lines, you understood a new point, that is where the buyer becomes insolvent. Correct? अब यहाँ पर नीचे उसका example लिखा हुआ है. Let us read down. Okay. Mr. A sold goods. Mr. A sold goods worth rupees 80,000 to B. Okay. Sold goods of rupees 80,000 to B on a credit period of 2 months. ठीक है. In the meantime, B becomes insolvent. Here A is an unpaid seller as B has become adjudicated as insolvent by the court. मतलब उसने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था कि आज तुम गुड्स लेके जाओ और मुझे 2 महीने के बाद आके पे करना. कितना? 80,000. बट 2 महीने के अंदर अंदर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है. तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो पे कैसे करेगा, राइट? सो इवन इन सच केसेस द सेलर विल बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर ओनली. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हर पॉइंट का एग्जाम्पल दिया है. सो इवन इफ यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स देन यू कैन फ्रेम इट अपने हिसाब से. बस सेंस चेंज नहीं होना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, however, seller cannot be called as an unpaid seller in the following circumstances. अब सुनो, अब हमें इतना पता तो चल गया है कि unpaid seller कौन होगा. There are 4 points. Correct? If we revise all the 4 points, first point was whole amount is pending. Second point is part payment is pending. Third is where a negotiable instrument like a check or a promissory note has been dishonored when presented. करेक्ट. और 4th पॉइंट क्या है? वेयर बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास which speak that when does the seller become an insolvent person, insolvent seller. करेक्ट. अब नीचे आपको ये बताया है कि अगर so you have been given 3 points. ठीक है. अगर ये 3 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी हिट होता है तो सेलर अनपेड सेलर नहीं होगा. तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि इन तीनों सिचुएशंस में सेलर को हम अनपेड सेलर नहीं कहेंगे. देखो, सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर. क्या लिखा है? सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर, हाँ, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. फर्स्ट देखो, फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है. सी वेदर यू अग्री. फर्स्ट, बायर हैज टेंडर्ड टू पे but seller has refused to accept. मतलब क्या? buyer has tendered to pay. मतलब buyer पे करना चाह रहा है, buyer is willing to pay, पर seller को ही नखरे हैं. करेक्ट. seller क्या कह रहा है? it's okay, pay later, है ना? तो यहाँ पर buyer खुशी खुशी पे करना चाह रहा है, but seller has refused to accept payment. तो अगर seller खुद से होके refuse कर रहा है तो उस केस में will he be called as an unpaid seller? No. See, buyer is ready to pay, है ना? buyer के पास कैश है, he is willing to pay, he is even ready to pay. अगर उसके बावजूद अगर seller को कोई नखरे हैं, whatever it is, he is refusing to accept payment, तो क्या वो unpaid कहलाएगा? नहीं, he will not be called as unpaid. Why? Because buyer is ready to pay ना. अब seller accept नहीं कर रहा है payment, अब उसके हो सकते हैं कुछ अलग reasons हो. So if he is not willing to accept, right, so whose party at default? Here seller will be called as a person who's the defaulting party. Correct? Because यहाँ पर buyer has tendered to pay, has offered to pay, but seller has refused. तो अब सेलर रिफ्यूज कर रहा है तो हम उसे अनपेड क्यों कहेंगे? करेक्ट. बिकॉज ही हिमसेल्फ इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द पेमेंट. सो इन नो केसेस विल ही बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर. ठीक है. पॉइंट 2 देखो, सेलर हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. सो ड्यूरिंग
that credit period, he cannot be called as an unpaid seller. मतलब क्या? अब सुनो, let us take an example. सेलर ने 2 months का क्रेडिट पीरियड दिया है बायर को, ठीक है? मतलब क्या? ये इतने सेंटेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मतलब वो बायर को क्या बोल रहा है कि तुम गुड्स अभी लेके जाओ, टेक द गुड्स इमीडिएटली, एंड आई एम गिविंग यू 2 months का टाइम पीरियड. आई एम गिविंग यू 2 months का टाइम पीरियड. ओके, 2 महीने के बाद आप आके पे कर देना. मतलब सेलर खुद से होके बायर को 2 महीने दे रहा है. राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेडिट पीरियड? दैट मीन्स यू कम आफ्टर 2 months एंड देन यू पे. मतलब सेलर, क्या ये 2 महीनों तक, क्या ये 2 महीनों तक अनपेड कहलाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज सेलर खुद से होके 2 महीने दे रहा है. करेक्ट? सेलर इज टेलिंग द बायर दैट टेक 2 months and after 2 months come and pay me. तो डू यू थिंक ये 2 महीने तक अनपेड कहलाएगा? नहीं ना, क्योंकि वो खुद से होके बोल रहा है कि लो 2 महीने. हाँ, अब आगे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट क्रेडिट पीरियड, if buyer has not paid, then he will be called as an unpaid seller. मतलब 2 महीने खत्म हो चुके हैं, 2 months have been expired, but yet the buyer is not paying, then yes, in such cases the seller will be called as an unpaid seller. ठीक है? तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लर्न क्या करना है? I'll write down. Till 2 months he will not be called as an unpaid seller. After 2 months he will be called as an unpaid seller. 2 महीनों तक अनपेड सेलर नहीं होगा वो. अगर 2 महीने खत्म हो जाते हैं और फिर भी पेमेंट पेंडिंग है, तब हम उसे अनपेड सेलर कहेंगे. क्लियर है क्या? लिख लो चाहिए तो. ठीक है. सो दिस इज पॉइंट 1, वी आर डन विथ पॉइंट 2. यस, बोलो डाउट. ठीक है. नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट सेज buyer has rejected the goods for some reason or cancelled the contract. मतलब क्या? इन शॉर्ट सिंपल सी चीज है. सेलर ने गुड्स सेल किए बायर को, पर बायर हैज रिफ्यूज्ड और रिजेक्टेड द गुड्स. तो अगर बायर गुड्स को रिजेक्ट करता है तो बायर क्यों पे करे? सिंपल सी बात है ना. बायर हैज रिजेक्टेड द गुड्स, बायर कहता है कि मुझे ये गुड्स एक्सेप्टेबल नहीं है, or he has cancelled the contract for some or the other reason. We are not getting into the reasons. What are we understanding? That buyer has cancelled the contract or buyer has rejected the goods. तो अगर buyer goods को reject करता है तो वो buyer क्यों पे करेगा? तो buyer पे नहीं करेगा तो क्या seller को हम unpaid seller कहेंगे? The answer is no. That is why, in short, ये किसको हम पढ़ क्या रहे हैं? In which of the cases, let us read the heading again. Seller cannot be called as an unpaid seller in the following circumstances. तो हमने अभी थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा? Where buyer has rejected the goods. अगर buyer goods को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो पे भी क्यों करेगा? सिंपल सी बात है ना. So if he will not pay, so seller be called as an unpaid? No, of course not. So buyer has rejected the goods, hence the buyer will not pay, and therefore seller will not be called as an unpaid seller. It's a complete linkage. Correct? अब ये 3 points आप पढ़ लो. See if you are able to understand. Okay, now after reading this, take a fresh page in your notebook. Take a fresh page. Okay. Give the heading Rights of an Unpaid Seller. आज हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है? पढ़ लेंगे हम कल. आज सिर्फ डायग्राम बना दो. मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको वो वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है? गिव द हेडिंग राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर. ठीक है? अभी आपको डायग्राम इतना सा बनाना है. I'll just mark it over here. So you have given the heading rights of an unpaid seller. Correct? अब make a arrow, उसके नीचे लिखो
अगेंस्ट गुड्स एंड उसके नीचे राइट डाउन दीज 3 पॉइंट्स। मतलब आपका डायग्राम इन शॉर्ट सिर्फ इतना होना चाहिए, दिस पार्ट। ओके, सो यू हैव गिवन द हेडिंग राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, उसके नीचे मेक अ एरो एंड राइट डाउन अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट गुड्स। और अब उसके नीचे मेक डाउन 3 एरोज एंड आप यहां से कॉपी कर लो। उसके नीचे मेक 3 एरोज एंड राइट डाउन राइट्स ऑफ लीन, rights of stoppage of goods in transit and rights of resale. So when it is in your notebooks, it is a bit easier to understand. Okay. सिर्फ इतना सा डायग्राम बनाना है आपको। हेडिंग शुड बी राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, देन उसके नीचे अगेंस्ट गुड्स, एंड देन उसके नीचे मेक डाउन दीज 3 एरोज, राइट ऑफ लीन, right of stoppage of goods in transit and right of resale. Right of lien, right of stoppage of goods in transit, right of stoppage of goods in transit, and the third right is right of resale, right of resale. ठीक है? Now after making this diagram, leave a line and write down, leave a line and write down the above rights, the above rights, the above rights are called as, are called as, the above rights are called as right in rem, REM. The above rights are called as right in rem. rem is a Latin word और rem का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख दो, अगेंस्ट गुड्स। इसका मतलब क्या होता है वो अभी हम कल देखेंगे। ठीक है? सो ये जो 3 राइट्स हैं उसको कौन से राइट्स कहते हैं? दीज राइट्स आर कॉल्ड एज राइट्स इन रेम, राइट्स इन रेम। और रेम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट गुड्स। ये भी ऊपर आपने लिखा ही होगा यहाँ पर, करेक्ट? तो स्टिल make sure that you write this line that the above rights are called as rights in rem, और rem का मतलब क्या होता है? against goods. ठीक है? ये वाले जो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले देखे हैं राइट्स, इसको कौन से राइट्स कहते हैं? राइट्स इन रेम। ठीक है? और ये यहाँ पर जो राइट्स हैं ये अभी आपको अभी डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है? जब हम पढ़ेंगे देन यू मेक दिस डायग्राम, बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू दैट दीज राइट्स, ये जो 4 यहाँ पर राइट्स हैं, दीज राइट्स आर कॉल्ड एज, दीज राइट्स आर कॉल्ड एज, अभी मत लिखना, सिर्फ मैं लिखती हूँ, दीज राइट्स आर कॉल्ड एज राइट्स इन पर्सोनम, पर्सोनम। ठीक है? और पर्सोनम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट बायर। वहां पर क्या था? अगेंस्ट गुड्स, और इस यहाँ पर क्या है? अगेंस्ट बायर। ठीक है? सो डू नॉट मेक दिस डायग्राम फॉर नाउ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी फ्रॉम टुमारो? सो यू हैव मेड दिस डायग्राम। ठीक है?
यहाँ पर आपके पास देयर आर 3 राइट्स, सो एवरी डे वी विल बी कंप्लीटिंग 1 राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे डिटेलिंग में दिया हुआ है। ओके, आज का समझा है सबको लेक्चर? बताओ, आज तो हमने बहुत इजी पढ़ा था। राइट अनपेड सेलर पढ़ा हमने। अनपेड सेलर कौन होता है? वी हैव सीन 4 पॉइंट्स। देन वी हैव सीन हु विल नॉट बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 एंड वी हैव सीन द रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विथ राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। उसमें 2 राइट्स हैं, अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट बायर। बट हम कल से कौन से राइट्स पढ़ने वाले हैं? अगेंस्ट गुड्स। अगेंस्ट गुड्स में देयर आर 3 सेपरेट राइट्स, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज ऑफ गुड्स एंड राइट ऑफ रीसेल। ठीक है, चलो देन आई विल सी यू ऑल टुमारो।